हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अपने प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म चैप्टर हमारे यूपीएससी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। एवरी ईयर दोनों से बुद्धिज्म और जैनिज्म को मिलाकर दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब 4 नंबर का गैप बहुत बड़ा गैप होता है। ठीक है, तो ये पीएमएफआईएस की बुक है और इसमें बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का ये चैप्टर हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे कि सब कुछ अच्छे से समझ जाएं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आप देखेंगे कि इसमें चार्ट वगैरह जो है वो बहुत अच्छे से सर ने इंक्लूड किया है, जो रिवीजन के लिए आपके लिए रामबाण हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसमें प्रीलिम्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। मेंस का भी कंटेंट दिया हुआ है बट प्रीलिम्स पे हम बहुत फोकस करेंगे। मैं बताते चलूँगा क्या प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके। सो लेट अस स्टार्ट। दिस डॉक्यूमेंट कवर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, बट वी विल मोर फोकस ऑन द प्रीलिम्स। ओके, सो let us start. So first of all, that the first topic is the emergence of new religious ideas. If we will see the 6th century BC, that is an important stage in our Indian history in the development of new religions. Okay, there was a growing opposition for the ritualistic and Brahmanistic religions, which have a elaborate ritualism, which we call the orthodox ideas of Brahmins. Okay, so in the 6th century BC, there was a growing opposition because of the elaborate ritualistic religious ideas of the Brahmanism. Okay, so which led to the emergence of the heterodox. So Buddhism and Jainism comes under the heterodox religious sects. Okay, which deny the supremacy of the orthodox Brahmanistic religions. Okay, which deny the Vedic religions philosophy. So among these, the two most important religions which emerged in the 6th century BC was the Buddhism and Jainism. Okay, these were two the most important. There were also some other religious which sect emerged in the 6th century BC, but Buddhism and Jainism were the most important in these. Okay, so to development of any religious or new religious ideas or emergence of any new religions, there was some causes in background. So what are the causes of origin of new religions in the 6th century BC? Okay, so we will see that region. So if we will see that region, first is a discrimination against lower caste or lower varnas. So is a perpetuating discrimination against the lower varnas. Reaction of the Kshatriyas, the Brahman at the top of the varna system and Kshatriya at the second. But this development of the varna did not like by the Kshatriyas and Vaisyas. Okay, third is the religious unrest. There was a huge religious unrest, like there is a elaborate rituals. There is a Sanskrit mantra which are not able to understand by the local peoples. Okay, new agriculture economy, emergence of new agriculture economy which help the you can say that which help the Vaisyas especially, which help the Vaisyas to gain the more wealth. So when they have more wealth, they try to increase their social status. But as per the Brahmanical Varna system or Vedic Varna system, there is no chance to improve your social status, improve your Varnas. Okay, which are restricted completely by birth. Okay, there is a reaction against the changes in material life. So because of the from the hunting gathering and from the pastoral life, there is a transaction from the agriculture life. So material life in the people's life have increased. So there is also reaction
in this. Okay, so let us see that one point we will see very briefly. So discrimination against lower varnas. So if we see that the post Vedic times, because the early Vedic time there was varnas, but they were not linked with the birth. Okay, anyone can change varna based on their occupation, but in the later Vedic period these varna become restricted and no one can change the varna which are linked to the by birth. If you born in the Vaishya class, you will be die in the Vaishya class. If you born in the untouchables, you will die as a untouchables. Or if you born in the Sudras, you will die as a Sudra. So this development took place in the post-Vedic period, the period about 1000 BC to 500 BC we call the post-Vedic period. Okay, so in the post-Vedic period, society was clearly, there was a clear division of the Varna based on the birth system, which naturally did not like by the peoples, or it which naturally create the tension in the society. Okay, so we will see that member of higher Varna have some privileges. So and the members of lower Varna deny from the even some equalities, basic equalities. Okay, so it created the tension in the society. Okay, Vedic religious practices become irrelevant for a large section of the society. So the large section of society was did not like the elaborate ritual practice of the Vedic religions. They did not like the cattle sacrificing. So they started to looking the new religions, new ideas which are very simple and easy to understand. Okay, so the new religions such as if we will see the Buddhism and Jainism, they completely or deny or did not accept the notion of the birth as a measure of the social status. So they deny the birth system based on the Varna. Okay, so they deny the Varna system, you can say that based on the birth. So many people of the lower Varnas they attracted towards the Buddhism and Jainism. So this point is important even for the prelims ki Buddhism and Jainism did not accept the notion of the birth as a measure of the social status. Okay, फिर second point was the reaction of the Kshatriyas. The Kshatriyas who was the rulers, who was the ruler that time, okay, and they have more political power than before because when the economy from the pastoral to agriculture developed, when the new city emerged, Mahajanpadas emerged, so Kshatriya got more powers, they got more wealth, they got armies, okay, so but so they tried to attain the highest status in the society, but if we see the varna system, this is highest at the brahmans. So but brahman have the highest status, so kshatriyas reacted against the domination or highest status of the brahmanas. So kshatriyas even did not like the status of the brahmanas in the four varna system as a highest levels. Okay, who have a various, if we see that okay, brahmana have highest privilege in the four varna system and less that lesser to the kshatriyas, then much later to the vaishyas, and much more later and more disabilities to the sudras. Okay, so kshatriya seem to have led protest, so kshatriya have led protest, and if we will see the even the buddhism and jainism like mahavira and buddha, they were also belonged from the kshatriyas clans. Okay,
So this took the region or origin of the new religions. So सिंपल था, कोई उसमें वो नहीं था. Next point is the Besiage quest for higher status. So as the economy developed from the pastoral to the urban settlement, okay, so Besiage economic condition improved a lot. But if we see that Vaisya, they were the third in the Brahminical society. From Brahmins, then Kshatriyas, then Vaisyas. So Vaisya also want to improve their social status. But the orthodox Varna system did not allow. Okay, so Buddhism and Jainism, if we will see, they did not give much importance to the notion of the birth as a measurement of the social status. So, if we see the Vaisya, they were attracted towards the Buddhism and Jainism. So, this point is also important. I have already told you for the prelims point of view. Okay. So, if we see the Kshatriyas and Vaisyas, these were the most important in the Varna system who give the generous support and gift to the Mahaviraj and Buddhas. So even the Vaisyas was the uh, Vaisya was the which give the most donation to the Buddhas and Jainas, Mahaviraj. So they supported a lot to Buddhism and Jainism. Okay, because Buddhism and Jainism provide them various facilities. Like if we see that, like one trader's name, if you can remember from the Vaisya class was Anath Pindika, who donated generous gift to the Buddhist Sanghas. Okay, so Buddhist Sanghas or Buddhas. Okay, then if we see the merchant which are belong from the Vaisya class, okay, they also extended the chief support to Buddha and Mahaviraj. Okay, in initial stage, Jainism and Buddhism did not attach, please remember for the prelims, did not attach importance to the existing Varna system. Initial stage, Buddhism and Jainism both did not attach any importance to the Varna system. Okay, hence it was possible for the improve their social status in new religions. So Vaishyas see that Buddhism and Jainism as an improvement of their social status. If we see the Buddhism and Jainism, they preach the philosophy of non-violence, okay, which ends war between the kingdoms, and when the war between the kingdoms ends, the merchant, the Vaishyas has more trade and commerce and profits. So इससे भी वैश्यास को बहुत खुशी हुई because they got the new area for the trade, okay, and economic improvement. The Brahminical law book, which we call the Dharma Sutras, it directly condemned the lending of the money based on the interest. So you cannot give loan as per the Brahma Sutras. But Jainism and Buddhism, 1 minute. But Jainism and Buddhism did not condemn the money lending. So Jainism and Buddhism did not condemn or did not was against the loan. So they were not against the loaning based on the interest. So Besia's one of the main work was that doing trade, which were improved by the philosophy of non-violence between the kingdoms, and second was that uh, lending money based on the interest, so which was supported by the Buddhism and Jainism. Okay, and these both things were not possible in the Brahminist religions or Vedic religion. Okay, so Brahminical attitude towards the trade was not encouraging. Even Brahmins say that if you cross the sea,
it was a taboo. You will lost the purity of the caste structure. If you cross the sea for the trade purpose, you will lost the your social status, your caste structure. But if we see that Buddhist approved the sea voyages, so Buddhist said this is nothing like that. You can see, you can go for the trade and you can cross the sea, you will not lose your social status. Okay, so this you will remember that even for the prelims even. Okay, fourth is a religious unrest. There was a huge religious unrest because of the complex rituals, elaborate rituals and sacrifices. Okay, so Vedic periods accept or promote the complex rituals, Sanskrit mantras which are not understood by the common peoples, and sacrifices. Okay, so sacrifices is also not liked by the peoples, sacrifice of the animals. Okay, so this was the unacceptable, these are not accepted by the peoples, and the superstitious beliefs and mantra confused them. Okay, so koi आ रहा है in a Vedic religion saying that something else, and another is coming and saying that something else. Though the common people got confused, they want any simple thought, simple point, simple mantra, simple way to get salvation. ओके, तो वो मोक्ष के लिए कोई सिंपल वे ढूंढ रहे थे, सिंपल वे सर्च कर रहे थे. So the teaching of the Upanishad, it was a good, it was an alternative system for the sacrifices, but it was a highly philosophical. Just think that if you even the today if you will go in the villages and ask them what is a life and how the life, how you will your atma and body is separated, so these things common people will not understand, so they were not understood by all. Okay, so Upanishad was highly philosophical text, तो ये आप याद रखेंगे कि what is Upanishad, they are the philosophical text. Okay, hence what would happen, the people start to looking out any simple short and intelligent way to get salvation, to get moksha. So such religious teaching should also be in their own language. I told you that the Vedic Sanskrit mantra which are in the Sanskrit language confuse the common peoples. पंडित जी आए एंड वो कुछ भी मंत्र पढ़ के चले गए संस्कृत में, कॉमन पीपल को अंडरस्टैंड ही नहीं हुआ कि क्या वो बोल कर गए. एंड वन मोर थिंग इज दैट प्लीज डू नॉट गेट ऑफेंड फ्रॉम एनी पॉइंट्स. ओके, सो पहले से ही सॉरी इफ एनीथिंग आई से रॉन्ग. ओके, सो पीपुल्स वांटेड टू कि उनको जो सॉल्वेशन मिले, उनको जो रिलीजियस टीचिंग मिले वो उनके लैंग्वेज में मिले, जो उनके समझ में आए. और बुद्धा एंड महावीरा ने दोनों रिलीजियस लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में ही अपने डिस्कोर्स, अपने सरमन्स दिए. ठीक है, बुद्धा इन द पाली लैंग्वेज एंड महावीरा इन द प्राकृतिक लैंग्वेज. फिर न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी वाज आल्सो द कॉज, because if we see that iron was introduced in the Uttar Pradesh region around the later Vedic period, starting of the later Vedic periods. Okay, and which spread overall Uttar Pradesh, you can say that. So it expanded the agriculture system, and because the forest was cleared, so it increased the productivity of the agriculture. Okay, and this productivity, the extended lands need the extended bulwarks. Okay, but the बैल की ज़रूरत होती थी ना खेती करने के लिए, खींचने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए. ऑल दीज थिंग्स नीड्स ब्लॉक्स. ओके, बट द ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस promote the cattle sacrifice for religion or food. So there would be the sort of the religion. So the people who are dependent on the blocks, they will not like the these practices. Okay, killing of the animal
they did not like, they discourage. If we see the Buddhism and Jainism, they advocate non-violence and discourage the killing of animal. ओके सो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि हाँ एक ऐसा भी रीजन है जो ये सब प्रमोट नहीं करता। ठीक है, तो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते गए जो एग्रीकल्चरल थे, जो फार्मर्स थे। ठीक है, फिर रिएक्शन अगेंस्ट द चेंजेस इन द मटेरियल लाइफ। ओके सो if we see that the from the pastoral to development of new cities, तो डायरेक्टली पूरा मटेरियल लाइफ पीपल्स की चेंज हो गई। जो लोग सीधा मतलब जो लोगों को डेली खाना नहीं मिल रहा था उनके लिए अब बहुत सारे चीज़ें, वेराइटी ऑफ थिंग्स टू ईट। द पीपल्स हु हैव नॉट इवन द क्लॉथ टू वियर, they have variety of the ornaments, variety of the clothes to wears. So the people, some section of the people did not like these changes. Okay, so they deny these changes and they want to old fashion life. Okay, they wanted to कि we can go in the old life where we are uh, pastoralists, where we are hunter and gatherers. ओके तो पीपुल डिसलाइक यूजिंग एक्यूमुलेटेड कॉइन्स बिकॉज द कॉइन सिस्टम आ गया, वेल्थ एक्यूमुलेशन आ गया, तो दे वर नॉट लाइक दीज थिंग्स सम पीपल। ओके एंड दे डिस्टेस्टेड न्यू डेवलिंग एंड ड्रेसेस, तो उन्होंने नए ड्रेस थे, नए जो इकोनॉमिक सिस्टम था उसको पूरी तरह से छोड़ दिया कि नो वी विल नॉट कम अंडर दिस। ओके वी विल गो इन द पास्ट लाइफ। तो जो प्रॉपर्टी की इम्पोर्टेंस थी, जो सोशल इनइक्वलिटीज एमर्ज हुई, वो बहुत ज़्यादा सफरिंग भी लेकर आई, बहुत ज़्यादा उनके टेंशन भी क्रिएट किया सोसाइटी में। तो जो कॉमन पीपल थे वो अपने प्रिमिटिव लाइफ की तरफ जाना चाहते थे कि भाई ये सब छोड़ो और भागो अपनी प्रिमिटिव लाइफ में, जहाँ ना कोई टेंशन होता था, ना प्रॉपर्टी की चिंता होती थी, ना खाने की चिंता होती थी। मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता मार को खाया, वो वाला चीज़ था कि हाँ कुछ भी मिल जाए खाकर। उस टाइम एक टाइम के खाने की चिंता थी कि हाँ उस टाइम खाने के बाद आराम से लाइफ जी रहे हैं भाई। ऐसा नहीं था कि हाँ आज का भी धन इकट्ठा कर लेते हैं, कल क्या खाएंगे उसका भी इकट्ठा कर लेते हैं। तो दे वर नॉट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। बट जैसे जैसे ये सिस्टम आया वैसे वैसे टेंशन भी बढ़ता गया। ओके सो दीज वर द कॉजेस ऑफ द एमरजेंस ऑफ द न्यू रिलीजियस आइडियाज। अब हम देखते हैं बुद्धिज्म के बारे में, पूरा पॉइंट्स देखेंगे, उनके लिटरेचर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्धा, इनके पीरियड को याद रखना है, बर्थ पीरियड और डेथ पीरियड, मतलब किस पीरियड में ये थे। 563 BCE टू 483 BCE। ओके ही वॉज द क्लियर फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म। हिज बर्थ नेम, मतलब जो चाइल्डहुड नेम था, दैट वाज द सिद्धार्था। ओके एंड इनका जन्म हुआ था कापिल वस्तु में, जो कि अभी के टाइम पर कहा जाता है कि नेपाल में है। ठीक है, लुम्बिनी में, लुम्बिनी के नियर कपिल वस्तु में हुआ था। ठीक है, 563 BC में। हिज फादर नेम वाज द सुद्धोधना। ओके हु वाज द लीडर ऑफ द शाक्यगना। तो शाक्यगना के लीडर थे इनके फादर। ठीक है, एंड इनकी माता का नाम माया देवी था, जो कि कोलियन क्लैन से बिलोंग करती थी। याद रखना है, थोड़ा कभी पूछा जा सकता है। तो फादर किससे बिलोंग करते थे? शाक्यगना से। माता जी इनकी कहाँ से बिलोंग करती थी? कोलियन क्लैन से। ठीक है, तो इनकी मदर जो थी वो बर्थ के टाइम में उनकी डेथ हो गई थी। एंड इनका जो पालन पोषण कहते हैं, जिसको कहते हैं फोस्टर मदर, हु टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, वॉज द प्रजापति गौतमी। सो प्रजापति गौतमी was his foster mother. So these 4 to 5 points you will remember that. Okay, so when Buddha was born, so some scholar comes in the Kapilastu and they which were serving and which were under the king Suddhodana, and उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि सिद्धार्थ वुड बी और वन डे रिनाउंस हिज किंगडम। ओके
और कहा जाता है कि सीधा उन्होंने ये बोला था कि या तो सिद्धार्थ बहुत बड़ा किंग बनेंगे, ही वुड बी द एम्परर ऑफ द लार्ज एम्पायर, और आइदर ही विल रिनाउंस द किंगडम कंप्लीटली। तो इनके फादर को बहुत टेंशन हो गया कि कहीं उनका बेटा ये सब छोड़कर साधु ना बन जाए, संत ना बन जाए। ठीक है, तो सिद्धार्थ वाज गिवेन अ शेल्टर अपब्रिंगिंग। तो एक मतलब छोटे से घर के अंदर ही रखा उन्होंने, बाहर के जाने ही नहीं दिया उनके पिताजी ने। तो विद इन द प्लेस वाज, ठीक है, तो जितनी भी हार्श रियलिटीज थी लाइफ की उन सब से दूर रखा। बिल्कुल मतलब राजा की लाइफ उनको बचपन से ही दी सिद्धार्थ को, कि इससे उनका मन इन सब चीज़ों में अटैच हो जाए और वो इस मतलब कोई साधु संत ना बन जाए। ठीक है, देखो कापिल वस्तु के बारे में, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उसमें कहा जाता है कि उसके कुछ प्लेस यूपी पिपरवाह में भी आता है और कुछ का प्लेस तिलारकोट नेपाल में भी आता है। तो कापिल वस्तु कहते हैं कि डिवाइड हो गया है आपके टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे। बट आप याद रखिए, कभी अगर पूछे कि पिपरवाज एंड तिलारकोट वाज फेमस और वाज लिंक्ड टू द, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए, दे आर लिंक्ड टू द बुद्ध, महात्मा बुद्ध। ओके, सो 16 साल के थे जब सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध उनके बचपन का नाम था, तो उनकी शादी करा दी कि इससे भी थोड़ा रुके रहेंगे। और उनका सन का नाम था राहुल, राहुला लिखा है बट कहा जाता है कि राहुल। ठीक है, तो जब वो 29 के साल के थे तब वो एक बार घर से बाहर निकले, वो अपने कैरिएटर को जो रथ चलाने वाला था, दे पर ही परसुएडेड हिम एंड गो इनटू द सिटी। तो हीज फर्स्ट जर्नी वाज दैट, 29 ईयर्स में फर्स्ट जर्नी थी ये। ठीक है, आउटसाइड द होम। तो बहुत ट्रोमेटिक थी, बहुत ही ज़्यादा ट्रोमेटिक। तो उन्होंने क्या देखा, ये सीक्वेंस याद रखना, ही फर्स्ट सॉ द ओल्ड मैन। ओके, बहुत बूढ़ा व्यक्ति उन्होंने देखा। तो कहा जाता है कि इन्होंने पूछा अपने जो कैरियोटर से थे, उनसे कहा कि जब उन्होंने ओल्ड मैन को देखा तो कहा कि ये कौन है। तो कैरियोटर ने कहा कि हर मतलब हर कोई अपने लाइफ के लास्ट स्टेज पे ऐसे ही हो जाता है। तो गौतम बुद्ध ने कहा क्या मेरी हालत भी ऐसी हो जाएगी। तो जो चैरियोटर था उन्होंने कहा यस, हर कोई इसी लाइफ में आता है लास्ट स्टेज पे। अब ये टेंशन हो गया गौतम बुद्ध को। तो ऐसे ही द सेकंड पर्सन ही सी द डेड मैन एंड द सेम क्वेश्चन आस्क्ड कि इवन आई विल डाइड। सो चैरियोटर वाज अ ट्रू मैन, ही सेड यस, एवरीवन विल डाई एंड इंक्लूडिंग यू सर। और प्रिंसेस नहीं, सो आप भी मर जाएंगे राजकुमार। तो वो बिल्कुल सच्चा था, मतलब पहला गुरु कह सकते हो आप। देन ही सॉ द एस्थेटिक, नहीं थर्ड सेकेंड वाज द सिक मैन, देन डेड मैन, देन एस्थेटिक, मतलब साधु संत जो बिल्कुल खुशी था, बिल्कुल हैप्पी था, डिड नॉट केयर अबाउट द फ्यूचर एंड पास्ट। सो गौतम बुद्ध आस्क्ड कि व्हाट हैपेंड टू हिम, व्हाई ही इज सो हैप्पी। सो चेरियोटर सेड कि सर, यस सर, जो भी। तो चेरियोटर सेड दैट कि ही इज abandoned everything, every material life, he is the free from uh, every bondage, and that's why he is happy, he did not care about the future and past. So गौतम बुद्ध ने सोचा यार ये लाइफ तो बहुत अच्छी है। ओके, एट दैट मोमेंट ही रियलाइज दैट द डिके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी वर इनएविटेबल। सो मरना ये मतलब बिल्कुल इनएविटेबल है, इट वुड बी हैपन। ओके, तो हर किसी को मरना है, ये गौतम बुद्ध ने रियलाइज कर लिया, ये जो 4 इंसिडेंट उन्होंने देखा। सो वो डीपली अपने मन के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब सेड हुए, बहुत ज़्यादा सोचने लगे। एंड सिद्धार्थ लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ।
सो सिद्धार्था लेफ्ट होम इन द सर्च ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ। तो कह सकते हो कि 29 एज में ही उन्होंने घर छोड़ा था। ठीक है, फिर ही स्पेंड द 6 year एज अ वॉन्डरिंग एसेटिक। ही मेट मैनी टीचर्स, एक्सप्लोर्ड सेवरल पास इंक्लूडिंग द एक्सटेंसिव फास्टिंग, बहुत ज़्यादा फास्टिंग भी की, भूखे भी रहे, prolonged meditation but could not get enlightenment. Okay. Finally, at the age of 35, Siddhartha abandoned the extreme methods. तो पहले उन्होंने बहुत एक्सट्रीम मेथड्स, भूखे रहना, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना एक ही जगह पे बैठ के, ठीक है, बट उनको अल्टीमेट ट्रूथ जिसके लिए उन्होंने घर छोड़ा था उसका पता ही नहीं चला उनको। तो बट जब 35 एज के थे तब उन्होंने कहा कि एक्सट्रीम कंडीशन छोड़ो, एंड स्टार्टेड मेडिटेशन अंडर द पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। तो बोध गया इन बिहार ही सिटेड ऑन द पीपल ट्री और बहुत ही प्यार से मेडिटेशन करने लगे, नॉट इन एक्सट्रीम कंडीशन। ओके, और 49th डे था वो। इन हिज मेडिटेशन ही अटेन सुप्रीम नॉलेज। ओके, तो सुप्रीम नॉलेज किस एज में? 35 की एज में। दैट इज कॉल्ड द एनलाइटनमेंट। और उसके बाद इनको कहा गया निर्वाणा या निब्बना कहा जाता है बुद्धम, मतलब बुद्धिज्म सेक्ट में। ठीक है, सिंस देन ही हैज बीन कॉल्ड एज बुद्धा और द वाइज और द एनलाइटन वन। बुद्धा मतलब जिसको एनलाइटन मिल गई हो। ओके, तो गौतम बुद्धा गिव फर्स्ट सरमन टू सारनाथ, ये याद रखना, इन वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो द फर्स्ट सरमन ऑफ द गौतम बुद्धा वाज इन सारनाथ, वाराणसी के उत्तर प्रदेश में, which was known as धम्म चक्र प्रवर्तना। ओके, setting in motion the wheel of dharma। ओके, तो मतलब धर्म में बहुत ही ह्यूज चेंज। इसके जो फर्स्ट सरमन में जो 5 डिसाइपल थे, जो 5 शिष्य थे, जो बोल सकते हो, या स्टूडेंट थे, इन द फर्स्ट सरमन वार कौंडिन्य, भारडिका, वाष्पा, महानमा एंड अश्वजीत। मैं कहूँगा नाम थोड़ा याद रखो, यूपीएससी क्या है ना, आजकल नेम देकर पूछता है कि ये क्या थे। तो ये याद रखो, दीज वर द स्टूडेंट ऑफ द गौतम बुद्धा इन द फर्स्ट सरमन। थोड़ा मतलब एक दो नाम तो याद ही कर लो, जैसे कौंडिन्या याद कर लो एंड भारडिका याद कर लो, बस 2 ही याद कर लो, कोई नहीं बात। ठीक है, कौंडिन्य वाज द फर्स्ट डिसाइपल, और इसके ज़्यादा इसमें कुछ नहीं याद रखना है, ये ब्राह्मण था। ठीक है, बस इतना ही याद रखो आप। ठीक है, एक दो बात और भी याद रखना, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर अलार कल्मा एंड उद्रक रामपुत्रा, ये थे टीचर्स ऑफ द बुद्धा। दीज वर टू द टीचर्स ऑफ द बुद्धा, तो इनका दोनों का भी नाम आप याद रखेंगे, उद्रका रामपुत्रा एंड अलारा कल्मा। ठीक है, फिर उसके बाद जब उनको सॉल्वेशन 35 ईयर्स में मिल गया, देयर आफ्टर ड्यूरिंग 45 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ बुद्धा विजिटेड मैनी प्लेस ऑन फूट। मतलब ये तो कहा जाता कि महात्मा बुद्ध जो थे वो बहुत चलते थे, मतलब कहा जाता कि 8 से 10 किलोमीटर वो डेली चलते थे। ठीक है, ही विजिटेड मैनी प्लेस ऑन फूट, टीचिंग धम्माज, मतलब अपने सरमन को देने के लिए, धम्मा को टीचिंग के लिए बहुत ज़्यादा चलते थे। राइचुअस लिविंग, कन्वर्टिंग पीपुल एंड ऑर्गेनाइजिंग them into community called the Sangha. He encountered many staunch supporter of rival sect, मतलब डिफरेंट सेक्ट के भाई वो इनकाउंटर, इनके अगेंस्ट भी खड़े होते थे गौतम बुद्ध के, इंक्लूडिंग ब्राह्मणाज, बट डिफीटेड देम इन डिबेट्स। तो गौतम बुद्धा ने सबको डिबेट करके हरा दिया। ठीक है, सो अब ये यूपीएससी प्रीलिम्स में आया है क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध ने कौन कौन से प्लेस को विजिट किया था। तो याद रखेंगे, वैशाली में गए ही थे, राजगीर, बोध गया, पाटिलपुत्री, ये तो पाटिलपुत्री, राजगीर, बोध गया मगधा के किंगडम में आता, तो मगधा किंगडम भी उन्होंने विजिट किया था। मल्ला किंगडम में जहाँ इनकी डेथ हुई थी तो वो तो विजिट ही किए होंगे। सारनाथ में इनका फर्स्ट सरमन था, तो यूपी
या सारनाथ में होगा ही। कौशाम्बी, ये याद रखना है कि वत्सा में भी इन्होंने विजिट किया था। श्रावस्ती एंड अवध जो कि कोसला में पड़ता है, दीज वर द कैपिटल ऑफ द कोसला, वहां पर भी गए थे गौतम बुद्ध। एंड मथुरा सूरसेना, जो सूरसेना की कैपिटल है, वहां पर भी गौतम बुद्ध गए हुए थे। ठीक है, तो ये एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, याद रखना, उसमें पूछा गया था। सो ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ 45 ईयर्स बुद्धा वांडर्ड विद द संघ, जब मतलब बहुत सारे लोग अपने संघ के साथ वांडर करते थे, टीचिंग करते थे, प्रीचिंग करते थे। बट जो 8 मंथ तक ही करते थे, जो 4 मंथ मानसून का था, उस समय महात्मा बुद्ध जी रेस्ट करते थे। मतलब उस समय कोई टीचिंग नहीं, कोई सरमन से ज़्यादा वो वांडर ही नहीं करते थे, ज़्यादा चलते ही नहीं थे। ठीक है, और ये याद रखना, द मॉन्क्स हैड नो मटेरियल पोजीशन एंड वर डिपेंडेंट ऑन द डेली आल्म, मतलब भिक्षा। सो कोई मटेरियल पोजीशन अलाउ नहीं था बुद्धा के टाइम पे वहाँ के मॉन्क्स को, वहाँ के स्टूडेंट को। भीख मांगो खाओ, भिक्षा लो खाओ। ठीक है, दे वर ऑब्लिजाइड टू ईट व्हाट एवर फूड दे रिसीव एज आल, किसी के घर गए एंड दे गॉट समथिंग एज अ आल्म्स, एज अ भिक्षा। सो दे आर दे आर बाइंड दे आर बाउंड टू ईट दैट थिंग, मतलब जो भी मिलेगा वो खाएंगे, उनको खाना ही पड़ेगा। तो ये भी आप याद रखेंगे कि ये बुद्धा के टाइम पे इतना ज़्यादा वो था। ठीक है, तो कहा जाता है कि बुद्धा ने 4 मंथ मानसून के टाइम पे क्यों वांडर नहीं करते, तो कुछ हिस्टोरियंस बिलीव करते थे कि मानसून के टाइम पे क्या होता है कि जो सीडलिंग होती है, एग्रीकल्चर होता है, उन सबको कोई नुकसान ना हो, पीपल्स के लाइफ को कोई नुकसान ना हो, लाइवलीहुड को कोई हार्म ना हो, इसलिए वो 4 मंथ जब मानसून पीरियड रहता था तब वो टीचिंग अपना बंद कर देते थे, दूर दूर जाकर देने के लिए। ठीक है, सो बुद्धा एक्टिविटीज जो थी डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रिच एंड पुअर, हाई एंड लो। तो महात्मा बुद्ध डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट कि कोई ज़्यादा अमीर है, ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस है, ब्राह्मण से या शूद्राज है, मेन है या वुमेन है। ठीक है, लड़की लड़का, मेल फीमेल। So people from all varnas, people from all gender, people from all status become the disciple, become the student of the Buddha because he did not discriminate them. So the major rulers at the time of Buddha, ये याद रखना है कि who are the ruler contemporary to the Buddha, ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो बिंबिसारा एंड अजात शत्रु जो कि रूलर थे मगधा के। ठीक है, बिंबिसारा वाज द फाउंडर ऑफ द Haryanka dynasties and Ajasatru come to the second. Okay, he was the child of the Bimbisara. चंदा प्रदेवता ये अवंती के किंग थे, ये भी याद रखेंगे कि ही वाज द कंटेम्परेरी टू द बुद्धा एंड महावीरा। फिर उदयाना वत्सा के किंग, ही वाज द आल्सो कंटेम्परेरी। देन प्रसेनजीत ऑफ कोसला, ये भी कंटेम्प्रेरी थे, और ये सब बन गए थे बिकम हिज डिसाइपल्स। तो ये सब डिसाइपल थे बुद्धा के। ठीक है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि क्यों बुद्धिज्म ज़्यादा स्प्रेड हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि सारे किंग जो थे इम्पोर्टेंट किंग, उन्होंने बुद्धिज्म के या महात्मा बुद्ध के वो स्टूडेंट बन गए। ठीक है, सो द बुद्धा पास्ट अवे और अचीव्ड महापरिनिर्वाण, तो जब बुद्धा की डेथ हुई तो उसको महापरिनिर्वाणा कहते हैं। एट द एज ऑफ 80 साल के थे जब 483 बीसी में कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में मल्ला के कैपिटल थी, वहां पर द मल्लाज ऑफ कुशीनगर क्रीमेटेड हिज बॉडी विद द सेरेमनीज ओके एंड बेफिटिंग अ यूनिवर्सल किंग। ओके, हिज रेलिक्स, जो बुद्धा के जो रेलिक्स थे, जो बोन्स थे, फ्रॉम द फ्यूनरल पायर वाज कलेक्टेड एंड डिवाइडेड इनटू 8 शेयर्स। तो 8 उनके जो बोन्स वगैरह थे उनको 8 डिफरेंट शेयर्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जैसे अजात शत्रु ऑफ मगधा उस टाइम पे थे,
लिच्छावी ऑफ वैशाली को दिया गया, सक्याज ऑफ कपिलवस्तु को दिया गया, मल्लाज ऑफ कुशीनगर, बुलीज ऑफ अलकप्पाज एंड द मल्लाज ऑफ पावा, ठीक है, कोलियाज ऑफ रामग्रामा एंड द ब्राह्मणा ऑफ बेठाडिपा ऑफ इरेक्टिंग स्तूपा ओवर इट्स सेक्रेड रिलिक्स। तो यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन आया था कि जो स्तूपा थे उसमें बुद्धा की रिलिक्स है, तो यस, तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है। फिर द सेक्रेड रिलिक्स जो थी बुद्धा की वर कमोमरेटेड 8 डिफरेंट स्तूपाज, तो 8 डिफरेंट स्तूपाज क्रिएट किए गए और उसके अंदर बुद्धा के रिलिक्स को रख दिया गया, ठीक है। टू मोर स्तूपा केम इनटू एग्जिस्टेंस, वन ओवर द एसेस ऑफ द क्रिमेशन ऑफ द फायर एंड फर्दर वन ओवर द वेसल, जो अर्न थे स्तूप बुद्धा के, उनके ऊपर, तो 2 और भी आए, तो 8 पहले से थे, 2 और। इन विच द बोन्स एंड एसेस हैड बीन गैदर्ड, तो बोन्स वगैरह जो बुद्धा के आए वो भी एक स्तूपा में है और आशीष जो है वो एक स्तूपा में है, ठीक है। थस स्तूपा इरेक्टेड ओवर द बॉडीली रिलिक्स ऑफ बुद्धा, क्या कहते हैं उसको, शारीरिक स्तूपा। तो जो स्तूपा थे जो बुद्धा के बोन्स के ऊपर क्रिएट किए गए उनको शारीरिक स्तूपा कहते हैं। एंड दीज वर द अर्लीस्ट सर्वाइविंग बुद्धिस्ट श्राइन्स या स्तूपास, ओके। इट इज सेड दैट कि अशोका जो कि 272 से 232 बीसी तक थे, was the follower और ardent follower of the Buddhism. Open 7 of these 8 स्तूपा, तो उस अशोका ने क्या किया, इन 7 मतलब 8 स्तूपा में से 7 स्तूपा को ओपन कर दिया एंड कलेक्टेड मेजर पोर्शन ऑफ द रेलिक्स, जो उसके अंदर रेलिक्स थे बुद्धा के उनको कलेक्ट किया विद इन द 84,000 स्तूपाज, ओके। तो उन्होंने कलेक्ट किया और 84,000 स्तूपा क्रिएट किया और उसके अंदर रख दिया। एंड ही बिल्ट पॉपुलराइज 84,000 स्तूपा एंड पॉपुलराइज द बुद्धिज्म एंड द कल्ट ऑफ स्तूपाज। तो ये याद रखेंगे, ये कहा जाता है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता कि 84,000 स्तूपा हैं, क्योंकि इंडिया में भी देखो तो अभी कहीं दिख नहीं रहे इतने, ठीक है। सॉरी, so it is difficult to determine the exact date of वर्धमान महावीरा एंड गौतम बुद्धाज बर्थ, क्योंकि एग्जैक्ट डेट नहीं पता। ये जो हम देखते हैं कि 563 बीसी में बोर्न हुए और 483 में के अराउंड डेथ हो गई, तो ये मतलब एग्जैक्ट नहीं है, देयर इज अ डिस्प्यूट ओवर दिस। सो जो जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ द बुद्धाज बोर्न है वो यही है, 566 टू 563 बीसी इनका बर्थ हुआ था, ठीक है। तो गौतम बुद्धा के कुछ नेम्स देख लेते हैं, ये भी याद रखना, यूपीएससी ने पूछ रखा है, ठीक है। शाक्य मुनि, द सेज ऑफ मुनि ऑफ द शाक्य क्लान, शाक्य क्लान से बिलोंग करते थे इनके पिताजी, ठीक है, तो इनको इसीलिए शाक्य मुनि भी कहा जाता है। महामुनि भी कहा जाता है, द ग्रेट सेज, याद रखेंगे प्लीज, ये पूछा गया है महामुनि वाला। तथागत कहा जाता है, हु हैज अटेन एनलाइटनमेंट, थस गोन वन, जो चले गए एनलाइटनमेंट अचीव करने के बाद उनको तथागत कहा जाता है। सिद्धार्थ तो बचपन का नाम था, बुद्धाज एनलाइटनमेंट, तो ये 2 तो आपको पता ही है, शाक्य मुनि भी पता ही होगा, महामुनि याद कर लीजिए, ये बस, ठीक है। अच्छा, बुद्धा के जन्म के टाइम उनकी माता जो थी महामाया, उनके ड्रीम में कुछ आया था, तो उसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ बुद्धा, क्वीन माया देवी द मदर ऑफ द बुद्धा हैड मदर ऑफ द बुद्धा हैड इन विच ही, मतलब एक ड्रीम आया, हैड अ ड्रीम इन विच शी सॉ व्हाइट एलिफेंट इंटरिंग हर ओम्ब। तो याद रखना कि व्हाइट एलिफेंट भी बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो सेज थे, जो सेंट थे, उन्होंने इंटरप्रेटेट किया कि दिस ड्रीम एज अ साइन दैट शी वुड गिव बर्थ आइडर टू द यूनिवर्सल मोनार्क
और अ ग्रेट एनलाइटनमेंट पर्सन। यही मैं बता रहा था ना, तो यही ड्रीम था कि या तो वो बहुत बड़ा मोनार्क बनेगा, बहुत बड़े राजा बनेंगे, या तो वो बहुत बड़ा एनलाइटनमेंट हो जाएगा, संत हो जाएगा, साधु हो जाएगा। ठीक है, आपका बच्चा। महाविनिष्कर्मण क्या है बुद्धा की लाइफ में? महाविनिष्कर्मण इज व्हेन बुद्धा लेफ्ट हिज होम व्हेन प्रिंस सिद्धार्था वाज ए 29 ईयर्स में के एज में, डीपली मूव्ड बाय सफरिंग मतलब विटनेस ओल्ड, ये उन्होंने ओल्ड को देखा, सिकनेस मतलब बीमार व्यक्ति को देखा, मरे हुए को देखा और साधु को देखा। तो इन्होंने सोचा कि अब मैं इस वर्ल्ड को छोड़ दूंगा अल्टीमेट ट्रूथ को पाने के लिए और लिबरेशन को लेने के लिए, ये साइकिल ऑफ द रिवर्थ की साल्वेशन को अटेन करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने एक रात में अपने घर को छोड़ दिया। ओके, इन हिज हॉर्स कंतका बाय हिज कैरियोटर कॉल द चंडका। ओके, तो जब उन्होंने घर को छोड़ा उसी को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण, मीन्स द ग्रेट डिपार्चर और रिनाउंसिएशन। और जो सिंबल, ये याद रखना है, द सिंबल ऑफ द हॉर्स इज एसोसिएटेड विथ इट। ठीक है, हॉर्स का नाम क्या था? कंथका था। तो ग्रेट डिपार्चर किससे रिलेटेड है? कंथका से। ये देखिए PIQ भी है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी PMFIS को। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम और एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा? तो लाइफ ऑफ द बुद्धा मतलब बुद्धा ने, महात्मा बुद्ध जी ने किस किस को किंगडम को विजिट किया था? अवंती को किया था, हमने देखा प्रदेवता के टाइम पे अवंती को किया था विजिट, चंद प्रदेवता। ठीक है, गंधारा, गंधारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हो आ जाता है, याद रखिए। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में गंधारा आ जाता है, और जहाँ बुद्धा विजिट किए थे वो यहाँ तक। तो बुद्धा उत्तर प्रदेश, MP, बिहार, ठीक है, इन सबसे ज़्यादा आके गए ही नहीं बुद्धा। तो गंधारा तो कभी उन्होंने विजिट ही नहीं किया, तो ये इनकरेक्ट। कोसला, भाई कोसला तो उन्होंने विजिट ही किया था, हमने देखा प्रसेनजीत के टाइम पे। ठीक है, मगधा, अजात शत्रु, बिंबिसार, इनके टाइम पे विजिट किया था। तो आप बाकी इसमें चूज कर लेना। ठीक है, तो क्या सही है इसमें? 3 और 4। देखिए, ठीक है, वैसे हम देखते हैं कि अवंती को भी विजिट ही किया था उन्होंने, बट यहाँ पर वो 1, 3, 4 ना कहकर वो कह रहे हैं 3 और 4। तो हम 3 और 4 ही याद रखेंगे, लेकिन हमने पढ़ा कि हाँ वहाँ तक वो गए थे। ठीक है, वो उनके डिसाइपल भी थे। ठीक है, ओके। UPSC ने जो दे दिया आंसर वो सही होता है, कोई बात नहीं, ये आप याद रखेंगे। ओके, सो चलते हैं अब टीचिंग ऑफ द बुद्धा। यहाँ से भी क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं भी, सर ने दिया होगा तो देखेंगे। द बुद्धा की टीचिंग हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टोरीज मेनली फ्रॉम द सुत्त पिटिका। तो सुत्त पिटिका इज कंटेन्स द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। सुत्त पिटिका क्या है? एक टेक्स्ट है जो कि बुद्धा की टीचिंग को कंटेन किया हुआ है। ठीक है, ये याद रखना, बुद्धा नेवर क्लेम टू बी अ गॉड। गौतम बुद्ध ने कभी भी नहीं कहा कि आई एम द गॉड, और इवन इंस्पायर्ड बाय डिविनिटी। ओके, ही रिगार्डेड द सोशल वर्ल्ड एज अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस रेदर देन द डिवाइन ओरिजिन। तो उन्होंने कहा कि जो सोशल वर्ड मतलब लाइक यू कैन से कि क्लॉथ, लाइक, तो ये सब सोशल वर्ड है। पोइट्रीज, लाइक अदर थिंग्स दैट। तो इन सब को, जो कि उन्होंने कहा कि जो भी सोशल वर्ड आप देख रहे हो ना, दीज आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, नॉट अ गॉड, नॉट अ डिवाइन ओरिजिन। ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए।
ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ इवन गॉड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो महात्मा बुद्ध डिड नॉट रिकॉग्नाइज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल, सोल को भी नहीं माना उन्होंने। ही आल्सो अटैक्ड ओवर द वर्ना सिस्टम, तो इन्होंने वर्ना सिस्टम की बिल्कुल अगेंस्ट थे। तो बुद्धा को क्या क्या नहीं एक्सेप्ट किया, गॉड को एक्सेप्ट नहीं किए, सोल को एक्सेप्ट नहीं किए, वर्ना सिस्टम के अगेंस्ट थे ये। और उन्होंने कहा भी नहीं कि जो सोशल ऑर्डर है वो या सोशल थिंग्स जो हैं वो गॉड ने क्रिएट किया है। आर्य सत्य और अष्टांगिका मार्ग देखेंगे। तो जब जो बेसिक टीचिंग थी आप बुद्धा इंक्लूड द 4 नोबल ट्रूथ, जिसको हम आर्य सत्य कहते हैं, एंड द एनलाइट 8 फोल्ड पाथ, जिसको हम कहते हैं अष्टांगिका मार्ग या अष्टांगिक मार्ग। तो 4 नोबल ट्रूथ एंड अष्टांगिक मार्ग। 4 नोबल ट्रूथ क्या है? 4 नोबल ट्रूथ्स क्या है बुद्धा के, जो टीचिंग बुद्ध महात्मा बुद्ध के टीचिंग के? लाइफ इज अ फुल ऑफ सफरिंग, मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है हर किसी के लाइफ में। और जो कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, लालच, समुद्या, याद रखेंगे समुद्या, समुद्या मतलब कॉज ऑफ सफरिंग, ठीक है, इज अ डिजायर। फिर सफरिंग एंड्स व्हेन डिजायर आर एलिमिनेटेड, दैट कॉल द निरोधा, एंड ऑफ सफरिंग। निरोधा इज एंड ऑफ सफरिंग, ठीक है। बुद्ध गौतम बुद्ध ने कहा कि सबकी लाइफ में दुख है और दुख का जो कारण है वो लालच है, और लालच को खत्म कर दोगे तुम्हारी जो दुख होगा वो खत्म हो जाएगा। और उन्हें कहा कि दिस कैन बी अचीव्ड, जो लालच तुम्हारी डिजायर है, इट कैन बी एंड, और इट कैन बी मतलब दिस थिंग्स दैट वी कॉल द एंड ऑफ सफरिंग कैन बी अचीव बाय फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ which promote the path of moderation between the severe penance and self indulgence that we call the magga, और मार्गा और वे। मग्गा मतलब मार्ग, ओके। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि 8 फोल्ड पाथ दूंगा जो कि माध्यमिक मार्ग है, बहुत ज़्यादा सफरिंग नहीं है, और बहुत ज़्यादा सेल्फ इंडल्जेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा समझ सकते हो ना आप। तो इसके बीच का मार्ग में दूंगा जिससे आप ये सफरिंग को एंड कर सकते हो, डिजायर को एंड कर सकते हो। तो वो 8 फोल्ड पाथ क्या थे, यहां पर देख लीजिए। कहते हैं राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, ये सब आप कहाँ पर यूज कर सकते हो? अपने आप इथिक्स 4 में यूज कर सकते हो, आप एस्से में यूज कर सकते हो। राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरीज एंड राइट मेडिटेशन भी होना चाहिए। तो अब ये बुद्धा के बारे में ये चार्ट देखेंगे, बहुत ही अच्छा चार्ट है, ठीक है, बहुत चीज़ें क्लियर होगी, और उसके बाद कल कवर करेंगे या दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ? तो ये हुआ लुम्बिनी गार्डन में, जो कि कापिलवस्तु नेपाल में पड़ता है, ओके। और जन्म से रिलेटेड थिंग्स क्या थी? लोटस था और बुल, सॉरी, जन्म से रिलेटेड, जन्म से पहले क्या था? विनोदेड एलिफेंट था, फिर उसके बाद कौन आया? लोटस और बुल, ठीक है। फिर एनलाइटनमेंट कहाँ बुद्ध महात्मा बुद्ध जी को मिला? बिहार में, बोध गया में। कहाँ? पीपल ट्री के नीचे। तो एनलाइटनमेंट किस मतलब एनलाइटनमेंट का सिंबल क्या है? पीपल ट्री है, ठीक है। महापरिनिर्वाण कहाँ बुद्ध जी की डेथ हुई? तो वो कुशीनगर यूपी में हुई, और उसका जो सिंबल है वो स्तूपाज है। फर्स्ट सरमन कहाँ पर दिया? सारनाथ यूपी में दिया, और उसका सिंबल क्या है? व्हील है, जिसको कहते थे धर्म चक्र प्रवर्तना, ओके। तो बुद्धा के 4 आर्य सत्य क्या थे? दुखा, समुदया, निरोधा, मार्गा। तो दुखा, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। समुदया, कॉज ऑफ द सफरिंग, कॉज इज द डिजायर। निरोधा, suffering ends when desire eliminated. Magga, desire can be eliminated by following the eightfold path.
ओके। बुद्धिस्ट काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो राजगीर बिहार में हुई थी। जो किंग था जिसने इसको कंडक्ट किया था वो अजात शत्रु थे, हरियंका डायनेस्टी से। ओके, और जो लीडर थे उसके वो महाकश्यप थे। ठीक है, और यहाँ पर जो सुत्त पिटका था और विनय पिटका, इनका कंपाइलेशन हुआ। सुत्त पिटका डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा, टीचिंग ऑफ द बुद्धा, विनय पिटका रूल्स ऑफ द मोनेस्टिक ऑर्डर। ठीक है, तो सुत्त पिटका किसको आनंद ने किया था, विनय पिटका उपाली ने। ये दोनों थे किसके, स्टूडेंट ऑफ बुद्धा। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुई, कालाशोक। कालाशोक के टाइम पे शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे कालाशोक। ठीक है, और कालाशोक की जो कैपिटल थी उस समय वैशाली ही थी। और इसके जो लीडर थे वो सबाकामी थे, सबाकामी वाज द लीडर। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, बुद्धिज्म जो वो डिवाइड हो गया दो सेक्ट में, अस्थाविरवादीन एंड महासंघिका। बाद में अस्थाविरवादीन क्या बन जाता है, हीनयाना, और महासंघिका महायाना। ठीक है, फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में पटना में हुई। इसके जो किंग और क्वीन किन्होंने कंडक्ट किया था, तो मौर्यन डायनेस्टी के अशोका थे। ठीक है, और इस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोगली पुत्र तिस्सा जो थे वो लीडर थे उस काउंसिल के। ठीक है, और यहाँ पर अभिधम्म पिटका की कंपाइलेशन हुआ। फोर बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुआ था, कश्मीर में कुंडल वन या कुंडल ग्राम में कहा जाता है, कुंडल ग्राम में। फिर कनिष्का थे उस समय कुषाणा डायनेस्टीज के, और वसुमित्राज जो वासुमित्र थे वो इसके लीडर थे या चेयरमैन थे कह सकते हैं, और वाइस चेयरमैन अश्वघोषा थी। ठीक है, और यहाँ पर बुद्धिज्म डिवाइड हो गया कंप्लीटली हीनयान और महायान जी। ठीक है, फिर स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, अगर देखें तो किंग कनिष्काज यहाँ पर रूल करते थे जम्मू एंड कश्मीर के अराउंड। किंग अशोकाज हमको पता है बिहार यूपी में। ठीक है, तो इन दोनों ने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया। तो किंग जो कनिष्का थे उन्होंने सेंट्रल एशिया वाले रिलीजन में बुद्धा को स्प्रेड किया, बुद्धिस्ट रिलीजन को स्प्रेड किया। और जो अशोका कह सकते हो उन्होंने भी ये चाइना, कोरिया, जापान यहाँ पर बुद्धिज्म को स्प्रेड किया। ठीक है, और श्रीलंका में, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया। एक मिनट, आई एम सॉरी, किंग अशोका जो थे उन्होंने बुद्धिज्म को इंडिया के बाहर लेकर गए। कहाँ कहाँ पर, श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में। कौन सा बुद्धिज्म, तो थेरावादा बुद्धिज्म। ठीक है, तो थेरावादा बुद्धिज्म अशोका प्रोपोगेटेड इन दीज कंट्रीज। और किंग कनिष्का जो थे उन्होंने क्या किया, सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान में महायाना बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा एक्सप्रेड किया। ठीक है, ओके, तो बाकी कल करेंगे। अब इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर 100 व्यूज भी आ जाते हैं तो इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।